ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ ਦਾ। ਸੋ 2022 ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਤਤਪਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫਤਾ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਪਾਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੌਬ ਪੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਥ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਜੀਕੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਸੋ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਆਪਣਾ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਸ਼ੋਅ ਰਹੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ 120 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। 121 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 180 ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਤੀ, 40 ਤੋਂ 60 ਕਰਤੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸਮਝੋ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਐਂਡ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆ ਐਂਡ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। 2023 ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲਿਆ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਸ਼ੋਅ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ SSB ਐਗਜ਼ਾਮ 2022-23, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਕਲਰਕ ਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਯਾਨੀ SSB ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਭਾਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲੋਬਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਯਾਨੀ ਗਲੋਬਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਫॉर ਯੂਥ 2022 ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੱਢੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਆ? ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਇਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਫਿਊਚਰਸ ਫॉर ਯੰਗ ਪੀਪਲ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਰਾਈਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ, ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਐ ਮੰਨੋ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। 40 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਊਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ। ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ GDP ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਹੁਣ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ, ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਨਾ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲੋਬਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਈਅਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1919 ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1914 ਤੋਂ 1919 ਹੋਇਆ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਪੈਰਿਸ ਪੀਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਇਹ ਪੈਰਿਸ ਪੀਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ILO ਯਾਨੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਆ ਐਂਡ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਨੇਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ 2022 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ? ਕਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਉਹਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰਿਹਾ? ਰਾਈਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ 2022 ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਜਿਹੜੇ 2022 ਦੀਆਂ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਯਾਨੀ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਾਈਨਾ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ
ਚਾਈਨਾ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਚਾਈਨਾ ਨੇ। ਐਂਡ 2023 ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਯਾਨੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਊਗਾ ਜੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਆਨਲਾਈਨ, ਰਾਈਟ। ਇਸ 2022 ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਗੇਮ। ਐਂਡ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ੰਘਾਈ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ਼ੰਘਾਈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਈਅਰ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਿਕ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਦੋਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਸੀ, ਬਟ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਪ ਸਹਾਰਨ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਗਾ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇਕਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ। ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫੂਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ? FAO, ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। FAO ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਰਾਈਟ। FAO ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਮ, ਇਟਲੀ ਹੈ। ਰੋਮ, ਇਟਲੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਲੈਜ਼ੀਓ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੈਜ਼ੀਓ, ਰਾਈਟ। ਰੋਮ, ਇਟਲੀ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਆ 1945। 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦਾ ਯਾਨੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ UNO 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945, ਯਾਦ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ। 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ UN ਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਟਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆਗਾ ਜੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1945। 16 ਅਕਤੂਬਰ 1945, ਜਿਵੇਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ UN ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ, 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਡੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਰੋਮ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਜ਼ੀਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇਕਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਹਲਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ LCA ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇਜਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ? ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, USA ਵੀ ਸੀਗਾ, US ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4-5 ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟਡ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 18 ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟ ਕੰਬੈਟ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਤੇਜਸ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀ ਸੈੱਲ ਵੇਚਣਾ ਗਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਜਿਵੇਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆਗਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ, ਇਜਿਪਟ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਸੀ, ਬਟ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਸਿੱਧਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਆਨਸਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਮੱਲ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਕੁਆਲਾ ਲੰਪੁਰ ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਜੋ ਕਰੰਸੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਰਿੰਗਟ,
ठीक है। सो मलेशिया ਨੂੰ बेसिकली अपना तेजस LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ਆਪਾਂ ਵੇਚਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिमूव्ड विच बैंक फ्रॉम इट्स प्रॉम्प्ट करैक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, यानी हाल ही विच कहंदा भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क तो किहड़े बैंक नूं हटा दिता। सुधारात्मक का मतलब की है, किसी को सुधारना, जिवें मान लो एक नलैक बच्चा होंदा उहनूं सुधारिया जांदा तो उहदे वास्ते सुधारात्मक एक प्रोसैस चलाया जाता जिहदे राहीं वो सुधर जाए। आपां यानी कि बहुत सारिया उहदे नाल गतिविधियां करदे हैं भी एवें करो फलाना करो त्योंका करो जुर्माना लाता फलाना त्योंका, राइट। उस तो बाद वो सुधर जाता तो फिर आपां उसनूं सुधारात्मक प्रोसैस दे विचों कढ दिंदे आ। इसे नूं कहंदे ने इंग्लिश दे विच PCA, यानी प्रॉम्प्ट करैक्टिव एक्शन। यानी कहने का मतलब जेकर कोई बैंक अपने नॉन प्रॉफिट एसेट्स, यानी कहने का मतलब जेकर मान लो उन्हें लोन देता लोगों को पर लोन लोग वापस दे ही नहीं रहे तो उस तरीके की उहदे ते, यानी ऑबवियस गल नलैक बच्चा ही हो गया, नलैक बैंक ही हो गया, इस करके RBI उहदे ती सख्ताई करता। बट हुण उस सख्ताई दे विचों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया निकल चुकिया क्योंकि उसने सुधार कर लिया तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सो याद रखना कि RBI ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नूं PCA दे विचों रिमूव कर दिता है। अगला क्वेश्चन कहता जी एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB भारत की अर्थ व्यवस्था लई अपने 2022-23 के विकास के अनुमान नूं अप्रैल विच कहंदा अनुमानित 7.5 तो घटा के कहंदा किन्ने प्रतिशत करता। यानी कहने का मतलब जो ADB आ यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक आ, इन्होंने GDP की एक अपनी अनुमान लगाया सी। जिवें तुहानूं पता कि मॉर्गन वैल्यू जिहड़े हैगे मॉर्गन फाउंडेशन वाले आ वो भी लाउंदे आ, बहुत सारे आ, IMF भी लाउंदा गा, वर्ल्ड बैंक भी लाउंदा गा, होर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आ जिहड़ियां GDP की ग्रोथ दसदे भी इन्नी इंडिया की हो सकती है, इन्नी फलानी कंट्री की हो सकती है। तो ADB ने 7.5 कही सी, उस तो घटा के 7% कर दी गई है, 7% कर दी गई है। इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन भी पेपर के देखने को मिल जाते हैं, राइट। हुण आपां ADB की गल आ तो इंटरनेशनल बैंक आ बेसिकली, तो ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की जिहड़ी स्थापना हुई है वह हुई है जी 1966। याद रखने का तरीका यह है कि इसे साल अपना पंजाब हरियाणा अड्ड अड्ड होए सी। चलो खैर, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जिहड़ा एस्टैबलिशमेंट होया 1966 दे विच होया एंड जिहड़ा इहदा हैडक्वार्टर भाई वह कित्थे है जी मनीला। हैडक्वार्टर इहदा कित्थे है मनीला, कित्थे भला फिलीपीन दे विच। रैमन मैगसेसे अवार्ड सुनिया होगा, वो फिलीपीन का तीसरा प्रेजिडेंट सी जिहदे नाम ते रैमन मैगसेसे अवार्ड दिता जाता गा, राइट। हालांकि वो फिर गल्लां बातां दस दांगे, बट हाँ चलो एशियन डेवलपमेंट बैंक एस्टैबलिशमेंट 1966 मनीला इहदा जिहड़ा हैगा जी हैडक्वार्टर है, राइट। जेकर एग्जैक्ट जगह देखनी हो जिवें रोम FAO का हैडक्वार्टर आ, लैजियो की एग्जैक्ट जगह, उमें मनीला के नेड़े जिहड़ी जगह हैगी उसका नाम आ जी मंडालू युंग एवें जी कुछ है, ठीक है। मंडालू युंग बेसिकली मनीला कोले जिहड़ी हैगी जगह हैगी मंडालू युंग, एग्जैक्ट देख लो नैट ते चेक कर लो, इहो जिहा कुछ है, राइट। कई बार ऑप्शन आ जाते इस करके तुहानूं मैं दस दिता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दे नाल करना, बहुत ही सौखा। देखो कहता जी किहड़े मंत्रालय ने हाल ही विच खेतीबाड़ी बुनियादी ढांचा फंड माइक्रो फूड प्रोसैसिंग उद्यमां दे प्रधानमंत्री रसमीकरण ते प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना दे विचकार एक कन्वर्जेंस पोर्टल लॉन्च किया है, राइट। कहने का मतलब किहड़ी मिनिस्ट्री ने कीता किहड़ी मिनिस्ट्री ने कहंदा लॉन्च किया एक कन्वर्जेंस पोर्टल बिटवीन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन एंड माइक्रो फूड प्रोसैसिंग। हुण देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੂਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्रीज। बहुत सिंपल है। तो ऑर्गेनाइजेशन हो गई, मिनिस्ट्री हो गई, इन्नियां दी जिन्नियां भी रिपोर्ट्स आउंदियां एक खास करके अजकल ट्रेंडिंग दे विच क्वेश्चन है ये पूछ ले जाते। सो फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्रीज, हुण मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री की गल हुई है तो यदा मिनिस्टर तुहानूं पता होना चाहिए, उस मिनिस्टर का नाम है जी पशुपति कुमार पारस। सो मिनिस्टर भी जरूर याद रखना, पूछ लिया जाता है। अगला आ गया जी कहना व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022।
ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਗਲੋਬਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਗਾ? ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਚੌਥਾ ਰੈਂਕ ਆ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗਲੋਬਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਚੌਥਾ ਗਾ। ਐਂਡ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੀਅਤਨਾਮ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਆ, ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਆ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ, ਯਾਨੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ, ਪਤਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰੈਂਕ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸਦਾ, ਬਟ ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਪਲੇਸ ਟੂ ਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਏਸ਼ੀਆ 2022 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 63ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਹੈਜ਼ ਰੈਂਕਡ 63rd ਇਨ ਬੈਸਟ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਇਨ ਏਸ਼ੀਆ 2022 ਬਾਈ ਗ੍ਰੇਟ ਪਲੇਸ ਟੂ ਵਰਕ, ਗਲੇਸ ਪਲੇਸ ਟੂ ਵਰਕ, ਰਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਕੇਰਲਾ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਕੇਰਲਾ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਲੂਵਾ। ਇਹ ਅਲੂਵਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਲੂਵਾ, ਕੇਰਲਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ 63rd ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਂਕ ਲਿਆਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ EBG ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੈਂਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਰਤਾ, ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਸੌਖਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, EBG ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਹੈਜ਼ ਇਸ਼ੂਡ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਬੈਂਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੇ SMS ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਤੀ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ SMS ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। SMS ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ? HDFC ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਰਜੈਸਟ ਬੈਂਕ। ਸੋ EBG ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵੀ HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਾ। HDFC ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੁੰਬਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 41.85 ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ 869 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਹਨ, ਰਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਫॉर ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਐਂਡ ਇਨਕਮ ਆਗੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਕਾਲੀਆ ਸਕੀਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਾਲੀਆ ਸਕੀਮ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕਾਲੀਆ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਕਾਲੀਆ ਉੜੀਸਾ, ਰਾਈਟ। ਕਾਲੀਆ ਉੜੀਸਾ ਯਾਨੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਫॉर ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਐਂਡ ਇਨਕਮ ਆਗੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾਗਾ 869 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਟੂ 41.85 ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਲੀਆ ਉੜੀਸਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ ਉੜੀਸਾ ਜੇਕਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ CM ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਹਦਾ CM ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਆਪਣਾ ਗਣੇਸ਼ੀ ਲਾਲ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਗਣੇਸ਼ੀ ਲਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਇੰਡੀਆ COVID-19 ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਚੈਲੰਜਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਲੈਸਨਸ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਬਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਭਾਈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IMF ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ ਯਾਨੀ COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾਗਾ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ
एयरलाइन कंपनी बाजार हिस्सेदारी के हिसाब नाल दूजी सब तो वड्डी घरेलू एयरलाइन वजों उभरी है। यानी किहड़ी एयरलाइन कंपनी आ इमर्ज्ड एज द सैकंड लार्जेस्ट डोमैस्टिक एयरलाइन बाय मार्केट शेयर के हिसाब नाल यानी सैकंड लार्जेस्ट एयरलाइन कंपनी किहड़ी बनी आ टाटा सन्स दी आ, यानी रतन टाटा वर्गियां दी टाटा सन्स की जिहड़ी कि हैगी एयरलाइन विस्तारा एयरलाइन हैगी है जी विस्तारा एंड पहले नंबर ते पता किहड़ी है पहले नंबर ते हैगी है जी इंडिगो। पहले नंबर ते इंडिगो आ क्योंकि यह पहला भी सीगी बट इस टाइम जो विस्तारा दूसरे नंबर ते आ गया। सो विस्तारा इज़ द राइट आंसर क्योंकि अपन सैकंड प्लेस पूछा पहले तो इंडिगो पहला भी सी ते हुण भी है। समझ लगी भाई इंपॉर्टेंट है। अगला आ गया जी कहता किहड़े बैंक ने उत्तरी केरल विच पहली आल वूमेन शाखा खोली है। हुण देखो ध्यान दे नाल फिर उही आ गया जिन्हें EBG यानी कि इलैक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी की सी, उही बैंक जिन्हें SMS फैसिलिटी पहली बार कस्टमर वास्ते जारी की आ। एंड हुण आ गया जी कहना ऑल वूमेन ब्रांच इन नॉर्थ केरला। किहड़ा पहला बैंक बनया वो HDFC बैंक एंड HDFC बैंक है तो फिर उसका हैडक्वार्टर तो हुण चंगी तरह याद हो गया हो मुंबई। अगला क्वेश्चन आ गया कहता जी विच सॉफ्टवेयर कंपनी हैज़ बिकम इंडियाज 106वीं यूनीकॉर्न बाय रेजिंग USD 33 मिलियन। 1 बिलियन तो उपर जेकर किसी कंपनी की टर्नओवर हो जाए तो वह यूनीकॉर्न बन जाती है। सो इंडिया की किहड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी आ जिहड़ी कि 106वीं यूनीकॉर्न बन गई है तो उसका नाम है जी उसका नाम है शिप रॉकेट। जोमैटो वाला ना जोमैटो जितों खाना मंगाने हुंदे हो जोमैटो तो रोटी राटी तो जोमैटो वाले ने सपोर्ट की सी। शिप रॉकेट 1 बिलियन क्रॉस कर गई यानी USD 33 मिलियन की जो हैगी है 106वीं यानी की कहते हैं यूनीकॉर्न बन गई है। अगला आ गया कहता जी रिसेंटली कहता SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया अपनी पहली ब्रांच डेडिकेटेड टू स्टार्टअप्स इन विच सिटी। स्टार्टअप्स नूं लैके अजकल बहुत स्टेटां जिहड़ी हैगी या बहुत वर्ल्ड लैवल ते चल रहा है तरह तरह के स्टार्टअप्स यानी कि जिहड़े हैगे वो अजकल आ रहे हैं ऑबवियस गल है राइट। सो SBI ने कहता अपनी पहली ब्रांच डेडिकेट की है स्टार्टअप्स वास्ते एंड वो किहड़ी सिटी दे विच ओपन की है जी बेंगलोर यानी कि बेंगलोर राइट हो गया भाई। अगला आ गया कहता हाल ही विच भारतीय स्टेट बैंक ने किहड़े शहर विच स्टार्टअप्स नूं समर्पित अपनी है ये तो क्वेश्चन ही हो आ गया। एक मिनट द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द इनहांसमेंट इन द लिमिट ऑफ चलो पंजाबी गलत लिखी हुई है पंजाबी वाले ना जाओ चलो द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड इनहांसमेंट इन द लिमिट ऑफ एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम बाय 50,000 करोड़ टू हाउ मच। यानी यूनियन कैबिनेट ने यानी सेंटर ने अप्रूव करता कहता भाई लिमिट नूं जिहड़ी कि एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत आउंदी सी एंड उसकी पहला लिमिट जिहड़ी सीगी वो 50,000 करोड़ सी। हुण ओह लिमिट किन्नी करती हुण ओह करती जी 5 लाख करोड़ 50,000 तो सीधा ही 5 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ याद रखना है। यानी एमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम जिन्हों भाई ECLG भी कहा जाता है। पेपर दे विच डायरैक्ट क्वेश्चन आ सकता। अगला क्वेश्चन देखो भाई कहता बड़ौदा जिहड़ा तिरंगा डिपॉजिट है बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट स्कीम नूं कहता हैज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके आ कहता किहड़े बैंक दे नाल कोलैबोरेशन करके यह स्कीम जिहड़ी कि लियादी गई आ बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट स्कीम। हुण इत्थों शुरुआत की होगी 3-4 बैंक पढ़ांगे आपां जिवें SBI भी आऊगा HDFC भी आऊगा होर भी आउणगे फेडरल बैंक भी आऊगा। यानी कहने का मतलब इत्थों 3-4 बैंक आपां पढ़ांगे। इन्हां ने की कीता सी यह 15 अगस्त के करंट फेयर सारे 15 अगस्त के इन्हां ने की कीता सी आज़ादी वाले दिन हरेक बैंक ने अपनी अपनी ऑफर लैके आउणी हुंदी है। जिवें हुण मान लो क्रिसमस है इस तो बाद नवां साल है हरेक अपनी अपनी ऑफर लैके आउंदा तां 15 अगस्त यानी आज़ादी उत्सव से काफ़ी बैंकों ने अपनी FD जिमें आप फिक्सड डिपॉजिट है जी पैसे जमा कराने होंगे इन्वेस्ट करते होंगे वो इंटरस्ट रेट वधिया तो वधिया आपको कहते भी भाई साडे बैंक च तुसीं जमा कराओ पैसे तो तुहानूं इंटरस्ट रेट वधिया मिलेगा। उस तरीके दे नाल अलग अलग बैंक ने अपनी अपनियां जिहड़ियां हैगियां ओह जारी कीती यानी कहने का मतलब स्कीम्स राइट। उस दे विचों आउंदा एक बड़ौदा जिहड़ी हैगी तिरंगा डिपॉजिट ऑबवियस गल है बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट तो बैंक ऑफ बड़ौदा तो होगा तो किहड़े बैंक दे नाल कोलैबोरेशन कीता सीगा उहदा नाम सीगा भाई उज्जीवन SFB दे नाल
मिल के बेसिकली ये कीता सी। ਇਹਦੇ हालांकि ये याद रखने की लोड़ नहीं, बट मैं फिर भी दस देना कि 444 डेज वास्ते यानी 444 दिनों वास्ते जेकर तुसी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 5.75 ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲੂਗਾ ਵਿਆਜ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 555 ਯਾਨੀ 555 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6% ਵਿਆਜ ਮਿਲੂਗਾ। 6.1 ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਇਹ, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ, ਉਹੀ KBL ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਰਿੱਧੀ, ਇਹ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆ। KBL ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਰਿੱਧੀ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ KBL ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਰਿੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, KBL ਤੋਂ K ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਬਸ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ KBL ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ KBL ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਰਿੱਧੀ ਸਕੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਰਨਾਟਕਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 525 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 6.1 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ 6.1% ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਹੈਜ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਰ ਹੈ, ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਟੂ ਲਿਸਟ ਇਟਸ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਔਨ ਦਾ TIN 2.0 ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी केड़ा बैंक कहता इनकम टैक्स विभाग के TNA 2.0 प्लेटफॉर्म ते अपने भुगतान गेटवे प्लेटफॉर्म नूं सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक बनया है। कहने का मतलब की है कि TIN 2.0 प्लेटफॉर्म आ उत्थे जाके तुसी अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वगैरह सारा यानी जो डिजिटली आप करते हैं उसनूं करके अपना जो भी यानी डिपॉजिट कराने कढ़ाने सारा कुछ कर सकते हो, राइट है। सो बेसिकली वो केड़ा बैंक पहला बनेगा, वो बनया जी फैडरल बैंक, वो बनेगा फैडरल बैंक। एंड फैडरल बैंक का हैडकुआटर हुण तां तुहाडे याद होना चाहिएगा, अलूवा कित्थे है भला, केरला दे विच फैडरल बैंक, राइट है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया भाई, ठीक है। यही सारा कुछ हैगा जो बैंकिंग इकोनॉमी इशूज़ दे विच आ जाता, जो आप सिलेबस दे विच लिखिया हुंदा करंट अफेयर। विच बैंक हैज़ लॉन्चड उत्सव फिक्सड डिपॉजिट, उत्सव जिमें मैं दस्सिया कि SBI ने भी लॉन्च किया सी। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 15 अगस्त 2022 वेले उत्सव फिक्सड डिपॉजिट स्कीम की सी SBI ने, तो ये तहत उन्होंने कहा सी कि 1000 दिनों वास्ते कराओ तो तुहानूं 6.1% ते यानी इंटरस्ट की यानी हिसाब नाल पैसा मिलेगा, राइट। सो ये चीज़ां काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। चलो अगला आ गया, हुण देखो भाई कहता रिसेंटली कहता RBI ने, ये तो फिर पंजाबी गलत होगी, एक मिनट, रिसेंटली कहता RBI हैज़ कैंसल्ड द, रिसेंटली RBI हैज़ कैंसल्ड द बैंकिंग लाइसेंस ऑफ विच बैंक फॉलोइंग एन ऑर्डर फ्रॉम बॉम्बे हाई कोर्ट, यानी RBI ने किहड़े बैंक का लाइसेंस आ जिहड़ा ओह बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर से यानी कैंसल करता, उसका लाइसेंस कैंसल करता। क्यों? क्योंकि उन्होंने वधिया तरीके दे नाल कोऑपरेट नहीं किया, वधिया तरीके दे नाल कोऑपरेट किया नहीं, इस करके उसका नाम की है, याद रखना गा, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। एंड केड़ा कोऑपरेटिव बैंक, मूरे ला दो रूपी, रूपी, रूपी कोऑपरेटिव बैंक, रूपी कोऑपरेटिव बैंक का RBI ने लाइसेंस कैंसल करता, बस इन्ना याद रखना गा कोऑपरेटिव। मैं हरेक चीज़ क्योंकि देखो मैं भी तो सीधा सीधा लिखी है ना, तो ये चीज़ां दिमाग दे विच क्यों आ, पहली गल तो चलो मैं तो बहुत बारी पहला CAGA दे विच भी पढ़ाया होया, बट इनू याद रखने का तरीका एको एक कि कोई ना कोई लिंक बनाओ, बहुत सारी चीज़ां तुहाडे अपने आप एवें ही याद हो जाणगियां, जे नहीं भी याद तो ऑप्शन देख के याद आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलो अगला आ गया, देखो उही मॉर्गन वाला, मॉर्गन स्टैनले कहता GDP ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी की किन्नी प्रोजेक्ट की आ, जिन्नी आपां ADB की पढ़ी है कि 7.5 की सी ADB ने, तो घटा के 7.5 तो 7% करती। एंड मॉर्गन स्टैनले ने पहला ही 7% GDP दसी है इंडिया की, तो 7% आंसर आ गया, राइट आ। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान दे नाल, बहुत ही सौखा तो बहुत ही सिंपल, कहता हाल ही विच रखिया मंत्रालय ने किस एरोस्पेस कंपनी नाल 1700 करोड़ रुपए का करार किया कि कहता वह फ्रंट लाइन जंगी जहाज़ों लई वाधू मिसाइलां खरीदेगी। क्या बात है, हुण जदों जंगी मिसाइलों की गल हो जूगी तो तुहानूं इक्को एक याद आना चाहिए, सब तो पहला ब्राह्मोस, ब्राह्मोस, राइट है। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहता साइन किया कंट्रैक्ट 1700 करोड़ रुपए का कि एरोस्पेस कंपनी नाल कीता टू बाय एडिशनल मिसाइल्स कहता फॉर फ्रंट लाइन वॉरशिप। तो जो वॉरशिप आऊगा तो ब्राह्मोस याद रखना गा, ब्राह्मोस, तो ब्राह्मोस, 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 ब्राह्मोस एरोस्पेस
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਐਰੋਸਪੇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀਤਾਗਾ ਕਿ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਵਗੈरह ਖਰੀਦੇਗੀ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ 145ਵਾਂ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਨਡ USD 96.3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸੇਫ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਇੰਪਰੂਵ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਯਾਨੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨਾ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ 96.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ADB। ਰਾਈਟ ਆ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ADB, ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਜਿਹਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਮਨੀਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਮਨੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੰਡਾਲੂਯੁੰਗ। ਮੰਡਾਲੂਯੁੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਪੈਲਿੰਗ। ਤਾਂ ADB 1966, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ADB ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫॉर ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹ CAGA ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟਾਈ ਅਪ। ਸੌਖਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਦ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਸਾਈਨਡ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫॉर ਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ, ਕੀ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਕੀ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ PDF ਵਗੈਰਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾਗਾ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਪਣੇ ਪਏ ਆ ਭਾਈ, ਆਹ ਇੱਥੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮੈਂ ਲਾਉਣੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਰਾਈਟ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਆ ਪਿਆ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਟਿਕ GK, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੋਟ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿੰਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰੇ ਮੰਗਾ ਕੇ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਲੱਸ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਜਿੰਨਾ ਆ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿਖਾਇਆਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ PDF ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਓ। PDF ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ PDF। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਹ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਆ, ਆ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਫਲਾਈਨ 21/1 A100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ, ਘੋੜਾ ਚੌਂਕ, ਬਠਿੰਡਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਹੋਰ PDF ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ GK ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਮੈਥ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਸਟਾਲ। ਆਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨੀਚੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਬੈਚਿਸ ਹੈ, ਬੈਚਿਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਚ ਕੋਡ ਭਰਨਾ। ਉਹ ਬੈਚ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ? YouTube PDFs। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਚ ਕੋਡ ਭਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡੇਲੀ PDF। ਐਂਡ ਉਹ ਦਿਖੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ GK ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PDF ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦਾ which bank has signed memorandum of understanding with the Food Corporation of India to provide ਅਲਟੀਮਾ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਟੀਮਾ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਯਾਨੀ ਸੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਘੈਂਟ ਦੇਣਗੇ, ਸੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਇੰਨੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ, ਓ ਹੋ। ਤਾਂ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ
आंसर तो अल्टीमा सैलरी पैकेज वास्ते साइन किया गया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्सिस बैंक, याद रखना। इस तो बाद आ गया विच आर्म्ड फोर्स हैज साइंड मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद 8 बैंक्स टू प्रोवाइड कस्टमाइज बैंकिंग सर्विसेज फॉर इट्स रूप्स, यानी बैंकिंग सर्विसेज उन्होंने फौजियों वास्ते दी जाऊगी। तो किहड़े बैंकिंग दे नाल किहड़े बैंक दे नाल उन्होंने टाइप किया? 8 बैंकों के नाल कीता गा। किने कीता गा? किहड़ी आर्म्ड फोर्स ने कीता गा? तो वह कीता जी कोस्ट गार्ड, कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने बेसिकली 8 बैंकों के नाल साइन किया कि वह बैंकिंग सर्विसेज देणगे उन्होंने ट्रूप्स नूं। अगला आ गया भाई, कहंदा हाल ही विच किहड़ी सरकारी संस्था ने सेवा भारती ਅਤੇ युवा विकास सोसाइटी की भाईवाली नाल ग्रामीण उद्यमी प्रोजैक्ट के दूजे पड़ाव की शुरुआत की है। यानी कहने का मतलब की है कि ग्रामीण उद्यमी प्रोजैक्ट जो पार्टनरशिप की है कि रिसेंटली विच गवर्नमेंट एंटिटी हैज़ लॉन्चड, उसका दूसरा फेस है यानी कि जो लॉन्च किया गया विद सेवा भारती युवा विकास सोसाइटी के नाल जो किया है। राइट है, हुण देखो सीधी जी गल आ, उद्यम करना यूथ नूं अगे लैके आउणा तो स्किल डिवेलपमेंट उहदे वास्ते चलदा गा। तो याद रखने का तरीका यही है। तो फिर याद रखने का तरीका जेकर स्किल डिवेलपमेंट है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन यानी कॉरपोरेशन किहड़ी होगी? तो नैशनल स्किल डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन, नैशनल स्किल डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन। याद रखने के तरीके सारे याद तुहाडे भी रह सकते हैं। 150 क्वेश्चन हो गया भाई। अगले क्वेश्चन की आपां गल करते हैं ध्यान दे नाल। जेकर चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया, वीडियो नूं लाइक नहीं किया तो वीडियो नूं लाइक भी कर लो, शेयर भी कर लो, तो बाकी होरां नूं वैसे भी दस दिया करो कि भाई इत्थों पढ़ लो, कितना वधिया तरीके नाल पढ़ाया जाता। चलो खैर, तो कहंदा वेदांता लिमिटेड अते ताइवान दे फॉक्सकन ग्रुप ने कहंदा किहड़े राज विच सैमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने लई एक समझौते ते दस्तखत कीते है। ये एक बार मैं पहला भी पढ़ाया सी किते, शायद ऑनलाइन यूट्यूब ते ही होवे कि सैमीकंडक्टर वगैरह जेकर तुसीं देखो तो चिप वगैरह जिहड़ी सैमीकंडक्टर चिप है वो कोविड टाइम ते बानियां बंद हो गए सी एंड काफ़ी गड्डियां दे विच यूज़ किया जाता एंड होर बहुत होर। तो इंडिया कोशिश कर रहा सीगा कि सैमीकंडक्टर यूनिट अपने ही भारत दे विच लगे तो ऑबवियस गल है ताकि उसकी कमी वगैरह ना आवे। सो वेदांता लिमिटेड एंड ताइवान फॉक्सकन ग्रुप ने साइन कर ली पैक्ट एंड इंडिया दे विच सैमीकंडक्टर यूनिट लाउण वास्ते तैयार हो गया। एंड इंडिया की किहड़ी स्टेट है जी? गुजरात। किहड़ी स्टेट आ? इंडिया की गुजरात। किहड़ी तकनीकी कंपनी ने मिटी स्टार्टअप नाल सहयोग किया है? हुण मिटी की है? हुण ऑबवियस गल है स्टार्टअप के नाल रिलेटेड है। तो मिटी का एक मिटी स्टार्टअप हब है जिहड़ा सपोर्ट करदा गा एंड एक्सलरेट करने वास्ते XR टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स इन इंडिया। सो किहड़ी कंपनी ने, किहड़ी टैक कंपनी ने कोलैबोरेट किया गा मिटी दे नाल? मिटी का मतलब की है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो किहड़ी टैक कंपनी ने कोलैबोरेट किया गा? वो टैक कंपनी हैगी है जी मिटी, या तो फिर इधर मैटा। मिटी ते मैटा याद रह जाऊगा, मैटा कंपनी ने किया गा। अगला आ गया भाई, कहता रिसेंटली भारती एयरटेल ने लॉन्च किया अपना पायलट प्रोजैक्ट इन पार्टनरशिप विद विच स्टेट टू ऑफर बिल पेमेंट सल्यूशनस। कहता बिल पेमेंट वगैरह तुसीं भाई हुण कर सकते हो भारती एयरटेल तो, यानी जिवें आपां आम तौर पर बिल पेमेंट गूगल पे हो गया, गूगल पे कह गए, हाँ जी पे हो गया है ना। सो जां कह लो अपना तुहाडा भला करे पेटीएम हो गया या एमाजोन तो भी अजकल मेरे हिसाब से होंदा गा। राइट है, सो भारती एयरटेल ने भी ये लॉन्च किया अपना पायलट प्रोजैक्ट। किहड़ी स्टेट के नाल कीता गा? उड़ीसा के नाल कीता गा कि तुसीं बिल पेमेंट वगैरह भर सकते हो। अगला आ गया, हाल ही विच कहंदा किहड़ी तकनीकी कंपनी ने हुनर विकास अते उद्यमता मंत्रालय अते समर्था निर्माण कमिशन नाल भाईवाल की है कि जो कहंदा भारत के सिविल अधिकारियों को भविख लई तैयार हुनरां नाल सशक्त बनाया जा सके। हुण देखो सिविल सर्वेंट आ, पेपर वगैरह क्लीयर हो जाते हैं। कई बार तुसीं देखा होगा कि जो पुराने IAS अधिकारी आ उन्होंने कंप्यूटर डिजिटली करना बहुत औखा लगता, तो हुण उस तरीके दे नाल आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस इन्नी वध रही है कि उस टैक्नोलॉजी नूं समझना बहुत जरूरी है। सो किहड़ी टैक कंपनी ने कहंदा पार्टनरशिप की है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिवेलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप दे नाल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कमिशन। कहंदा भी वो इंपावर करूगा इंडिया के सिविल सर्वेंट विद फ्यूचर रैडी स्किल्स। सो किहदे नाल कीता टाई अप भाई? माइक्रोसॉफ्ट के नाल कीता है। अगला आ गया भाई 155,
कहता टाटा स्टील हैज़ inked a memorandum of understanding with which state government to establish a steel facility in which state। सो स्टील फैसिलिटी दे नाल याद रखियो भगवंत मान नूं, भगवंत मान दा मतलब पंजाब। सो टाटा स्टील ने मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कीती आ पंजाब दे नाल, कहंदा स्टील फैसिलिटी प्रोवाइड करवावांगे पंजाब दे विच कित्थे भाई, लुधियाना। लुधियाना याद रखना। 156 क्वेश्चन अगला कहता किहड़े देश ने 2022 संयुक्त राष्ट्र इंटेलिजेंसी टास्क फोर्स ਅਤੇ WHO स्पैशल यानी दे प्राइमरी हैल्थ केयर अवार्ड दे विशेष प्रोग्राम जितया है। यानी किहड़ी कंट्री ने कहता 2022 का UN इंटेलिजेंसी टास्क फोर्स ते हैल्थ नूं लैके यानी हैल्थ केयर अवार्ड बेसिकली जितया है। सो ठीक है कहना पैंदा पर जितया तो है, सो कहना पैंदा तो फिर इंडिया ने जितया है, याद रखियो भाई ठीक है। सो 2022 का UN इंटेलिजेंसी टास्क फोर्स एंड WHO स्पैशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हैल्थ केयर अवार्ड। अगला आ गया देखो ध्यान दे नाल, कहता हुण आपां कुछ अवार्डां की गल करिए। देखो अवार्ड स्टार्ट हो गए तो अवार्ड आ गए। कहता विच फिल्म हैज़ बीन अनाउंसड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर्स 2023। सो ऑस्कर 2023 वास्ते ऑफिशियल एंट्री मारी है अपनी एक इंडियन फिल्म ने जिहड़ी कि किहड़ी स्टेट दी आ, गुजराती। यानी वह फिल्म हैगी आ गुजराती फिल्म है एंड वो गुजराती फिल्म का नाम की आ जी, छेलो छेलो शो। छेलो शो, छेलो शो। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना गुजराती फिल्म। इस तो पहला ये ही यानी कि RRR जी तुसी सुनी होनी है या एक देखी होनी है फिल्म RRR। तो RRR का फिल्म एक दा गाना सीगा जिहड़ा कि ऑस्कर वास्ते एंट्री मारी है उन्हें भी, नाटो नाटो आजा छोरे नाटो 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 नाटो। सो वही है ठीक है। सो काफ़ी वधिया गल है, गाना घैंट सी ठीक है। इस तो बाद आ गया भाई किहड़ी अभिनेत्री नूं वकारी प्रियदर्शनी अकैडमी समिता पाटिल मैमोरियल अवार्ड मिले है। इंपॉर्टेंट है यार राइट। सो किहड़ी एक्ट्रेस है जिन्हें रिसीव किया प्रेस्टीजियस प्रियदर्शनी अकादमी समिता पाटिल मैमोरियल अवार्ड। सो उसका नाम है जी आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। यकीन मनो थोड़े भी याद हो जाएंगे, बस एवें ही याद करने जिवें मैं गल्लां बातां करी जाना, बहुत याद हो जाएंगे, बहुत याद हो जाएंगे। तुसीं ऐ मनो भी 100% याद तुसीं करना ही नहीं, मैक्सीमम याद कर लो। जिन्ने वारी उन्होंने देखोगे जिन्ने वारी अपने आप याद हो जाएंगे, ऐ भी नहीं भी तुसीं रट्टा मारी हो, ना ना ना, मैक्सीमम अपने आप याद हो जाएंगे। जो ऑप्शन देखोगे याद आ जाएंगे। तो उही गल है भी जेकर एवें याद रह जाए तो होर भी ज़्यादा अपना काम सौखा हो जाऊगा राइट। हर एक चीज़ का लिंक अपने दिमाग के विच बनाओ। देखो अगला क्वेश्चन कहता जी विच शिप बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग कंपनी हैज़ बीन अवार्डेड। इनू अवार्ड मिल गया विद द राजभाषा कीर्ति पुरस्कार बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। यानी कहता किहड़ी कहता गृह मंत्रालय द्वारा किहड़ी शिप बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग कंपनी नूं राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दे नाल सन्मानित किया जाऊगा या गया है। सो उसका नाम है जी GRSE। GRSE का मतलब की आ गार्डन रीच। गार्डन रीच इत्थों शिप दे नाल रिलेटेड कुछ होगा, शिप बिल्डिंग ही कह लो, शिप बिल्डिंग एंड ई तो की होगा GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग ही हो सकता है ना, एंड इंजीनियरिंग। एक बार चेक कर लो ठीक है, माड़ा एक बार ये चेक कर रहे हो ठीक है। GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग, नहीं ऑप्शन तो देख के पता लग ही जाऊगा। सो भाई इस यानी GRSE नो बेसिकली राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द्वारा मिलिया है। अगला क्वेश्चन आ गया कहता जी द न्यू तेलंगाना सैक्रेटरीएट कंपलैक्स है जिहड़ा उसका नाम चेंज करता तो नाम किहदे पिछे लाया गया, तेलंगाना सैक्रेटरीएट का, तो उसका नाम लाया भाई BR अंबेडकर दा, BR अंबेडकर। सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है BR अंबेडकर। अगला क्वेश्चन भाई 161, क्या बात है। अगला क्वेश्चन कहता केड़ा हिंदी राइटर आ रिसेंटली जिन्होंने अवार्ड मिलेगा जी 31वां कहता व्यास सम्मान। केड़ा हिंदी राइटर है जिन्होंने 31वां व्यास सम्मान मिलिया है। सो उन्होंने नाम है जी असगाट वजाहट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिंदी राइटर जिन्होंने व्यास सम्मान मिलेगा असगाट वजाहट। एंड इन्हों का जोड़ा प्ले सीगा जिहदे करके यह अवार्ड मिलेगा, उस प्ले का नाम हैगा जी महाबली।
महाबाली, महाबाली। अगला क्वेश्चन आ गया 162, कहता जी विच स्टेट हैज़ बीन अक्रैडिटेड द इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023। एक कैटागरी होंगी आ जिहड़ी कैटागरी का नाम हैगा जी बेस्ट डेस्टिनेशन, बेस्ट डेस्टिनेशन, बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर, यानी उन्होंने कल्चर देखण वास्ते एक बेस्ट डेस्टिनेशन आ। सो उस दे विच एक स्टेट ने यानी इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड यानी जित्तिया गया, ऑब्वियस गल आ। सो उस स्टेट का नाम आ जी वेस्ट बंगाल, उस स्टेट का नाम है वेस्ट बंगाल। सो याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ गया, किहड़ी कंट्री ने कहना होस्ट किया, हुण विन तो है नहीं क्योंकि होस्ट तो हो गया, तो किहड़ी कंट्री ने होस्ट किया वूमेन एशिया कप 2022। सो वूमेन एशिया कप पहली गल तो जित्तिया किने सी, ये जित्तिया सीगा इंडिया ने। हराया किनू सी, ये हराया सी इन्हां ने भाई श्रीलंका नू, यानी इंडिया जित्तिया सीगा एशिया कप अपना 2022 का। एंड होया कित्थे सी, ये होया सीगा जी बांग्लादेश, होया कित्थे सी बांग्लादेश। याद रख लेना भाई। 164 क्वेश्चन आ गया, कहता लोक नायक फाउंडेशन ते दे सालाना तहत पुरस्कार 18वां लोक नायक फाउंडेशन अवार्ड कहता किसने पेश किया। हु हैज़ प्रेजेंटेड विद द एनुअल साहित्य पुरस्कार ऑफ द लोक नायक फाउंडेशन अवार्ड। सो किने भाई पेश किया, ऑब्वियस गल है उसका नाम आ जी तनिकेला, तनिकेला बहरानी, 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 तनिकेला बहरानी, बहरानी, बहा इत्थे ए हो सकता वैसे बहरानी, देख लो एक बार, ठीक है। स्पैलिंग तो एवें भी हो सकता है, एवें भी हो सकता है, ठीक है। तनिकेला बहरानी, यानी यह याद रखना गा। तेलुगु राइटर है, तेलुगु राइटर, ठीक है, तेलुगु राइटर। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। अगला क्वेश्चन आ गया 165, ध्यान दे नाल। यह भी क्वेश्चन आप किया होया CAGA दे विच। कितनियां सिटीज़ आ देखो, हाउ मैनी सिटीज़ फ्रॉम इंडिया हैव बीन इंडक्टेड इनटू द यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क फॉर ऑफ लर्निंग सिटीज़ 2022 लिस्ट। यानी कहता यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ दे विच 2022 की सूची में कहता भारत के किन्ने शहरों को शामिल किया गया, वो है जी 3 शहर। एक तो हैगा जिहड़ा तेलंगाना तो, एक तो हैगा तेलंगाना तो जिहड़ा सिटी का नाम आ जी वो हैगा वारंगल, वो हैगा वारंगल। लिख लिख देखा करो, अपने आप याद होंगे। वारंगल तो 2 सिटियां हैगियां जी वो केरला तो, केरला की एक तो जिहड़ी हैगी फाइनैंशियल कैपिटल ही है, कल्चर कैपिटल सॉरी, केरला की कल्चर कैपिटल है, केरला की कल्चर कैपिटल है, उसका नाम की आ, उसका नाम हैगा जी थ्रिसुर, थ्रिसुर, ठीक है। केरला की कल्चर कैपिटल है जिहड़ी वो है, एक तो वो है, 3 सिटियां ना, ठीक है। केरला तो ही दूसरी सिटी है, उस दूसरी सिटी का नाम हैगा जी नलमपुर, ठीक है, नलमपुर, ठीक है, नलमपुर, नलमपुर, राइट। सो याद रखना गा, एक तो वारंगल होगी, एक थ्रिसुर होगी एंड नलमपुर होगी, राइट। सो याद रखना 2 केरला के विचों, एक तेलंगाना के विचों। इस तो बाद आ गया जी भारतीय फौज के किहड़े अधिकारी ने कहता काठमांडू विच नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा कहता नेपाली फौज के आनरेरी जनरल की उपाधि नाल सन्मानित किया, राइट। बेसिकली बहुत सालों तो जिहड़ा हैगा वो नेपाल वाले अपना प्रैस्टीजियस अवार्ड अपने चीफ आर्मी नूं दिंदे आ एंड आपां नेपाल के चीफ आर्मी नूं अवार्ड दिंदे एक साल छड्ड के। जिवें फॉर एग्जाम्पल मान लो एक दी अपने चीफ नूं देता तो ये हो यानी पिछले साल जिहड़ा हैगा वो आपां नेपाल के चीफ आर्मी नूं दिता होगा, यानी अगले साल नेपाल के चीफ आर्मी नूं, फिर अगले साल अपने इंडिया के चीफ आर्मी नूं नेपाल आर्मी अपना प्रैस्टीजियस अवार्ड दिंदी है, यानी कहने का मतलब रिस्पैक्ट के तौर पर सन्मानित किया जाता है। सो इंडियन आर्मी चीफ जिन्हों का नाम है जी मनोज पांडे नूं यह अवार्ड दिता गया, मनोज पांडे, मनोज पांडे याद रखना। अगला आ गया, कहता जी हु हैज़ वन एमी अवार्ड फॉर नरेशन इन द नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आवर ग्रेट नैशनल पार्क। आर ग्रेट नैशनल पार्क के विच डॉक्यूमेंट्री एक बेसिकली उहदे ते अपनी आवाज़ दी है, आवाज़ दी है, कहता ਉਹਦੇ करके एमी अवार्ड मिलेगा फॉर नरेशन। नैटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आ आर ग्रेट नैशनल पार्क, जिन्होंने आवाज़ दी उन्होंने एमी अवार्ड मिल गया एंड आवाज़ देने वाले पता कौन है, बरैक ओबामा, बरैक ओबामा, बरैक ओबामा, ठीक हो गया भाई। अगला आ गया
कहता जी विच एडिशन ऑफ रैमन मैगसेसे अवार्ड 2022 हैज़ रिसेंटली अनाउंसड। चलो एडिशन तो यह 64th सीगा, एडिशन तो 64th सीगा, बट रैमन मैगसेसे अवार्ड तो पूछा जाता होंगे भी ये किन्ना दे नाम ते मिलदा गा। ये थर्ड प्रेजिडेंट सी फिलिपीन दे, थर्ड प्रेजिडेंट सी फिलिपीन दे जिन्हां दे नाम ते यह अवार्ड मिलदा गा। सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड यह एशिया का हाईएस्ट अवार्ड है, एशिया का, इसे करके इस नोबल, इसे करके इस नोबल पीस प्राइज, नोबल पीस प्राइज फॉर एशिया भी कहा जाता, नोबल पीस प्राइज फॉर एशिया भी कहा जाता। यानी एडिशन जोड़ा है रैमन मैगसेसे का 64th है, थर्ड प्रेजिडेंट के नाम से यह अवार्ड मिलता गा, एंड नोबल पीस प्राइज फॉर एशिया भी इनू कहा जाता है, याद रखना। इस तो बाद आ गया जी हु हैज़ प्रेजेंटेड द स्मार्ट सॉल्यूशंस चैलेंज एंड इनकलूसिव सिटीज़ अवार्ड 2022। किन्ने ने प्रेजेंट किया? स्मार्ट सिटीज़ अजकल बनती बहुत इंप्रूवमेंट उन्होंने की जाती है, इनोवेशन की जाती है। सो उस अवार्ड के लिए किन्ना ने उस अवार्ड को बेसिकली रिप्रजेंट किया? वो किया भाई हरदीप सिंह पुरी ने, हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी, राइट। मैं क्वेश्चन उही लैके आना जो मैनू लगता कि पेपर के वास्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये मेरा मनना कि पेपर के तुहानू एज इट इज़ मिल जाएंगे। जेकर तुम पहले वाले क्वेश्चन भी देखोगे, खास करके आप जीके एडिक्शन भी करांगे, जिहदे आप ऑप्शन वाइज भी करांगे। ये वन लाइनर तां करके करा रहे हैं क्योंकि इस तरीके के नाल जेकर तुम इन्ने के याद कर लो तो होर बाकी करंट अफेयर करने बहुत सौखे हो जाएंगे, राइट। इस तो बाद आ गया कहता जी द Markham city is located in which country where a street has recently named after music composer A.R. रहमान। किड्डी वड्डी गल है यार, A.R. रहमान के नाम से कहता मारखन सिटी के विच उस यानी उसका नाम जो उन्होंने नाम से रखा गया किहड़ी कंट्री के विच तो वह हैगी आ जी कनेडा, वह हैगी आ कनेडा, कनेडा स्टेट के विच, कनेडा कंट्री के विच बेसिकली मारखन सिटी है, ठीक है। इस तो बाद आ गया हु हैज़ रिसीव्ड द प्रेस्टीजियस 2022 स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज। ये भी कैनेडा के नाल रिलेटेड है, जिसका नाम है जी एनाबेले रेसन, एनाबेले रेसन ने बेसिकली स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज आ जिहड़ा जित्तिया गया पानी दे विच जिहड़ा हार्मफुल एलगी हुंदा ना, एलगी उहदे वास्ते उहदे नाल किवें नजिठना उहदे ते रिसर्च की सी, इस करके इन्होंने वाटर प्राइज मिलेगा। स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज एनाबेले रेसन यूनीवर्सिटी का एक स्टूडेंट है, राइट। असो याद रखना कि इनू मिले भाई स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज। इस तो बाद आ गया कहता टाइम्स ग्रुप द्वारा पेश किए गए 67वें फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में किसने सर्वोत्तम अभिनेत्री का पुरस्कार जितया है। सो 67वें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किनू जाता गा? कृति सैनन, कृति सैनन को जाता गा। एंड कृति सैनन को केस पिछे जाता गा, एक फिल्म आई सी भाई मिमी, काफ़ी वधिया फिल्म है, मेरी भी देखी हुई आ, देख लेना जेकर नहीं देखी, सोहनी फिल्म है। कहने का मतलब कृति सैनन मिमी इस वास्ते इन्होंने अवार्ड मिलया सी। एंड एक्टर केड़ा भाई रणवीर सिंह, एक्टर किनू मिलेगा? रणवीर सिंह नूं मिलेगा, राइट। एंड क्रिटिक्स दे विच, क्रिटिक्स दे विच जिहड़ी बेस्ट मूवी आई है वह सीगी उधम सिंह दी। एंड बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी क्रिटिक्स दे विच मिलेगा विक्की कौशल नूं, विक्की कौशल नूं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़, हालांकि मेरे पहला भी कराए हुए नहीं, राइट है जी। इस तो बाद 119 सालों तो वध के अंतराल तो बाद कहता किहड़े राज नूं अपना दूजा रेलवे स्टेशन मिला। देखो हजे तक उत्थे रेलवे स्टेशन एक ही सी, 119 सालों बाद हुण दूसरा रेलवे स्टेशन बनेगा। सो 119 सालों बाद जेकर उस स्टेट का नाम है जी नागालैंड, नागालैंड। याद रखना इन्हों अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिल गया। एंड जेकर इत्थों के CM की गल करिए तो CM का नाम हैगा जी एन रियो, एन तो भी याद रख लो, चलो एन तो हैगा जी निफ्यू रियो, राइट। एंड CM तो चलो याद रख लिया, तो गवर्नर भी याद रख लो, गवर्नर का नाम है जी जगदीश मुखी, जगदीश मुखी, राइट हो गया। सो घैंट है ना भाई चीज़ां। चलो खैर 173 क्वेश्चन से पहुँच गए, जेकर हजे भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो करो, करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता जी साबका जर्मन चांसलर का नाम दसो। कहता जिसनों शरणार्थियों का स्वागत करने की कोशिशों लई यूनैस्को शांति पुरस्कार नाल सन्मानित किया गया। क्या बात है। तो यूनैस्को पीस प्राइज मिलेगा फॉर द एफर्ट्स ऑफ वेलकम रिफ्यूजी। कहता केड़ा फॉर्मर जर्मन
ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਐਂਜਲ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾਗਾ, ਉਹ ਐਂਜਲ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੰਜੇਲਾ ਮੈਰਕਲ। ਮੈਰਾਕਲ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਐਂਜਲਾ ਮੈਰਕਲ याद रख लो, एंजेला मैर्कल। अगला आ गया कहता जी हु हैज़ वन पुलिटज़र प्राइज़ 2022। हालांकि पुलिटज़र प्राइज़ तो बहुत जाने ने जिता, पर हुण पुलिटज़र प्राइज़ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ जो सब तो मशहूर रही आ बांग्लादेश की, उसका नाम हैगा जी फाहमीदा आज़ीमा। फाहमीदा आज़ीमा 4 जणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सब तो मशहूर कुड़ी फाहमीदा आज़ीमा बांग्लादेश की, इन्होंने मिलेगा जी पुलिटज़र प्राइज़ 2022। एंड किहड़ी कैटेगरी दे विच मिले इन्होंने? रिपोर्टिंग दे विच फाहमीदा आज़ीमा, याद रखना। अगला आ गया कहता जी प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अप्रूव किया कहता हाउ मैनी गैलेंट्री अवार्ड्स फॉर द आर्मड फोर्सिस एंड सेंट्रल आर्मड CAPF, यानी अवार्ड दिते गए बेसिकली, ये भी 15 अगस्त की गल है। द्रौपदी मुर्मू द्वारा किन्ने कहता गैलेंट्री अवार्ड अप्रूव किए गए आ? 107। ये एज इट इज याद रख लो क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज ही आ सकता है। 107। अगला क्वेश्चन आ गया कहता विच सीनियर लीडर फ्रॉम इंडिया विल रिसीव फ्रांसिस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। क्या बात है, एक सीनियर लीडर है कहता इंडिया का जिन्हें फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जित्तियागा। जेकर वोकैबुलरी स्ट्रोंग करनी होवे तो कांग्रेस का एक फेमस लीडर है शशि थरूर, यानी उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर इन्नी ज़्यादा स्ट्रोंग है कि फ्रांस ने अपना हाईएस्ट अवार्ड उन्होंने देता कांग्रेस सीनियर लीडर जिन्हों का नाम है जी शशि थरूर। याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। 178वां क्वेश्चन भाई कहता विच स्टेट हैज़ इमर्ज्ड एज अ विनर इन यूटिलाइजेशन ऑफ एग्री इंफ्रा फंड्स। कहता एग्री इंफ्रा फंडा की वरतों विच किहड़ा राज जेतू बन के उभरिया है, यानी इन्होंने एग्रीकल्चर किसानों यानी कि पूरे बहुत सारे फंड जारी किए एंड पहले नंबर पर आ गया एंड उसका नाम है जी अंधा धुंध। इन्होंने पैसे भराए इस करके आंध्रा प्रदेश। अगला आ गया भाई 179वां क्वेश्चन कहता जी वेंकैया नायडू तो किहड़े राज की पुलिस नूं राष्ट्रपति का रंग मिले है, यानी कलर अवार्ड होंगे एक बेसिकली जिमें कलर मिलते होंगे आपां नूं कॉलेज दे विचों है ना, कलर अवार्ड मिलते होंगे। सो उस तरीके दे नाल एक किहड़ी स्टेट पुलिस है जिन्हें प्रेजिडेंट कलर मिलेगा फ्रॉम वेंकैया नायडू तो? सो वो भाई हैगा जी तमिलनाडु की स्टेट पुलिस ने, ठीक है, तमिलनाडु की पुलिस ने बेसिकली, ठीक है ना भाई, इंपॉर्टेंट है ना। सो जेकर मज़ा आया, देखो बहुत सिंपल जी गल है, ये चीज़ां औखियां तां ही बहुत घट इन्हां ते मत्था मारदे, बहुत घट टीचर इन्हां ते पढ़ाउंदे आ। इसे करके सौखियां चीज़ां नूं यूट्यूब ते लैके आउंदे आ, जवाक इन्ना ज़्यादा इंटरस्ट उन्हां सौखियां चीज़ां दे विच दिखाउंदा तां कि उहनूं ऐ लगदा वी क्या बात है, मतलब आही सारा कुछ है क्योंकि मैनू सारा कुछ आता। ऑब्वियस गल है जेकर मैं सौखी चीज़ कराऊंगा जवाक खुश होगा तो वीडियो में लाइक भी करूँगा तो जवाक खुशी कहूगा कि मैनू तो सारा कुछ आने लग गया। पर यह सारा कुछ वो है जिहड़ा असली जिवें कहंदे हुंदे भी असली मिरर दिखाउणा, असली आईना दिखाउणा, असली शीशा दिखाउणा कि भाई तैयारी कर लो। इस तरीके के पेपरों के आउंदे आ। मैं वार कहना कि 15 के विचों 12 क्वेश्चन वो सारे कर दिंदे आ, 30 के विचों 20 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन वो सारे कर दिंदे आ। तुसीं वो बाकी करने जिहड़े सिलैक्शन दिंदे आ। भीड़ तो हट के चलो, भीड़ तो हट के चलना पैना तां ही तुसीं रैगूलरिटी बनाउणी, यानी तां ही रैगूलरिटी बनाउणी लाजमी आ। रैगूलरिटी देखो हुण 5 दिनों के विच तुसीं बनाउणी हो कि नहीं, तो बहुत कुछ तुसीं सीख के जावड़ोगे, मेरी गारंटी आ। लास्ट क्वेश्चन अज दे सैशन का कहता जी दिनेश सहारा फाउंडेशन ने एक अवार्ड बनाया गया जिहदा नाम है दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड। एक्सलैंस इन विच फील्ड कहता किहड़े फील्ड दे विच दिता जाऊगा? सो ये दिता जाऊगा जी म्यूजिक दे विच, यानी दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड है जिहड़ा म्यूजिक फील्ड दे विच दिता जावेगा। एंड दिनेश सहारा का जेकर तुसीं नाम नहीं सुनिया तो येलो रेवोल्यूशन दे विच काफ़ी वड्डा योगदान, एडिबल ऑयल जिहड़ा हुंदा गा वो प्रोजैक्ट दे विच काफ़ी वड्डा योगदान दिनेश सहारा फाउंडेशन का हैगा। इसे करके तुसीं सहारा देखते होवोगे उस पर लिखा दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड म्यूजिक वास्ते बेसिकली मिलिया करेगा। सो आ हो गया भाई तुहाडे करंट अफेयर का अज का सैशन, यानी अपना जो यह लास्ट वीक 2022 का उहदा अज का पहला टारगेट तुसीं पूरा कर लिया।
ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਥ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਕੇ ਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਇਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।